A very good morning, ninth class. Once again, I am welcoming everybody in biology class. As you know, we are doing chapter 6, tissue. So let's revise what all things we have done till now. In this chapter, we had studied about meristematic tissue, permanent tissue, simple permanent tissue, complex permanent tissue. In complex permanent tissue, we had studied about xylem, and today we are going to study about phloem. As you can see on the screen, phloem, it is a vascular tissue which transports food from leaves to other parts of plant. As you know, leaves are known as food factory or kitchen of the plant. सो किचन में यानी कि लीव्स में जो भी खाना बनेगा वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भी जाएगा और प्लांट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए 2 डिफरेंट वेसल्स हैं. ह्यूमन बींग्स में एक ही टाइप का वेसल होता है लाइक फूड पाइप ओनली, बट प्लांट्स में 2 डिफरेंट सिस्टम्स चलेंगे, xylem एंड phloem. So as you know, there are 4 elements in xylem. Same here, there are 4 elements in phloem. These are sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Let's discuss everything one by one. Sieve tubes. Sieve tubes are tubular cells, means tube-like cells हैं, and perforated walls. Perforated walls means porous walls. उनकी walls में hole हैं. Next one, companion cells. Companion cells it is usually associated with sieve tube. ये usually sieve tube के बिल्कुल साथ में जुड़े हुए होते हैं. Controls the activity of sieve elements. ये जो sieve tubes हैं उन्हीं को sieve elements कहते हैं और उनकी activity को control कौन करता है? Companion cells. Next, companion cells, or you can say it is nucleated. इसमें क्या है? Nucleus present होता है. Next, phloem fibers. Fibers, as you can say, are long and soft. So these fibers are also long and soft, also known as bast fibers. ये क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्टेम को, और जो कंडक्शन है फ्लोएम का जो ट्रांसफ़र होता है उसमें सेल्स को सपोर्ट करते हैं. Fourth and the last element is phloem parenchyma. It is also known as transverse cells or border parenchyma. ये कहाँ होते हैं? Located near the termination of sieve tubes in leaves. जहाँ sieve tubes leaves से connect होती हैं उस पॉइंट पर phloem parenchyma present होता है and helps in transport of food. So in the end, you can see on the screen there is section of a phloem. See at the top, perforated और you can say gaps के साथ एक लाइन है, that is sieve plate. अंदर जो dotted line है that is sieve tube. Right hand side corner phloem parenchyma. बीच में है companion cells और उसमें जो आपको dots दिख रहे हैं वो है nucleus. This diagram is very important, so draw this very neatly and nicely. So with this our plant tissue part is complete. Now today I am going to start with animal tissue. Animal tissue divided into 3 parts: epithelial tissue, connective tissue and nervous tissue. So today we will study only about epithelial tissue, that is divided into 4 parts: simple squamous epithelium, stratified squamous epithelium, columnar or ciliated epithelium, cuboidal epithelium. So let's discuss one by one. Epithelial tissue. What are epithelial tissue? This topic basically
I have explained in plants also. So same covering or protective tissue है. Cells are tightly packed and forms a continuous sheet. Cells इतने tightly packed हैं कि एक wall type of appearance बनाते हैं और इनके बीच में कोई भी intercellular space नहीं होता है. What is the function? Covers most organs and cavity with the body. एनिमल्स की बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं और जितनी भी कैविटी है, खाली जगह, लाइक इन माउथ वी हैव माउथ कैविटी, मुंह के अंदर खाली जगह तो है. इफ़ यू कैन फील इट, अंदर एक स्लिपरी सी लेयर आपको फील होती है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड, बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. ये जो है डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को एनिमल्स में अलग अलग रखता है. और परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, मीन्स परमिएबल है, हर एलिमेंट हर चीज़ को अलाउ नहीं करता है टू पास थ्रू. देन फर्स्ट टाइप सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल्स हैं. क्योंकि इतने एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट हैं तो ये बहुत ही पतली से लेयर बनाते हैं. इसका फंक्शन है ऑसोफेगस एंड माउथ की लाइनिंग. इफ़ यू कैन फील इनसाइड योर माउथ एक पतली सी लेयर है, स्लिपरी सी, फुल ऑफ म्यूकस, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. और यू कैन से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. स्किन एपिथेलियम सेल्स हैं जो कि एक पैटर्न में अरेंज होते हैं एक लेयर्स के साथ, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स होती है. तो ये थिक लेयर है. ये जो है स्किन को कटने फटने या ख़राब होने से बचाती है. आपने कभी भी देखा, आप नेल्स कट करते हैं, कभी कभी हम नेल्स के साथ एक स्किन की लेयर भी कट कर लेते हैं, पर हमें उसमें दर्द नहीं होता या फिर ब्लीडिंग नहीं होती. क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू की काफ़ी लेयर्स हैं. तो अगर हम उसमें से टॉप मोस्ट लेयर को थोड़ा सा भी कट कर लेते हैं तो वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को किसी भी इंजरी से. नेक्स्ट, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. कॉल्यूमिनार मीन्स पिलर लाइक, पिलर के जैसे. तो ये पिलर के जैसे सेल हैं और ये जो हैं सारे एपिथेलियल टिश्यू एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं. कॉल्यूमिनार एपिथेलियम में क्या है, स्पेशली सीलिया होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. स्पेशली ये कहाँ प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जहाँ पर सीलिया जो है हेल्प करता है म्यूकस को, जो लंग्स है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके नीचे पुश करने के लिए, ताकि वो क्लीन हो सके. म्यूकस इज़ बेसिकली सब्सटेंस जो सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में. जिसे आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा म्यूकस निकले तो कोल्ड या कफ सिचुएशन में होता है ना, चोक हो जाता है या फिर नोज से जो लिक्विड बाहर आता है, दैट इज़ अ म्यूकस, जो बेसिकली वायरस को बॉडी में एंटर करने से रोकता है. एंड इट्स अ काइंड ऑफ सिम्टम एज वेल, कि हम उसे कॉमन कोल्ड या फिर अगर आपका चेस्ट एकदम फिल्ड है लिक्विड से, या खांसी में जब चेस्ट से आवाज़ आए, तो वो म्यूकस की वजह से है. लेकिन म्यूकस का काम है ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, उनको मॉइस्चर प्रोवाइड कराना और उनको क्लीन रखना. सो फंक्शन हेल्प्स इन मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट में, मीन्स आपके सिस्टम्स को क्लीन करने के लिए हेल्प करता है. और ये कहाँ मिलता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स हैं, जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, उसमें कॉल्यूमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब लाइक. सो क्यूब शेप्ड सेल्स हैं. ये लाइनिंग्स बनाते हैं, मतलब वॉल बनाते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स की या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में होते हैं 3, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड इन बिटवीन द नेक. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ये जो है सेल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है. अब इसी में कभी कभार क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कुछ लेयर्स फोल्ड हो जाती हैं जिसमें ग्लैंड्स बन जाते हैं. तो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें ग्लैंड्स बन जाते हैं उसको कहा जाता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. वो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो है सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है जो कि हमारी बॉडी में क्लीनिंग या फिर बॉडी फंक्शंस में हेल्प करता है. So with this I am ending up today's class.
सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है फ्लोएम, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एपिथेलियल टिश्यू, उसके टाइप्स लाइक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉल्यूमिनार और ciliated epithelium, cuboidal epithelium, and in special cases glandular epithelium. So note down everything nicely, neatly. When you are drawing diagram, please avoid colors. Draw with pencil and label it with pencil only. So take care. Goodbye.